الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى الله إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه البخاری و مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف الحدیث سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضور کے برگزیدہ صحابہ میں سے ہیں، اور ہم نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان عبداللہ نام کے 3 صحابہ بہت مشہور تھے جن کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا تھا۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جن کو صحابہ میں حکیم الامت کا لقب ملا تھا، اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابہ میں اربع الصحابہ کے لقب سے مشہور تھے، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے علم تفسیر میں وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی قرآن کریم کی بعض آیات کا مفہوم اور تفسیر آپ سے پوچھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزانہ ایک علم کے اوپر پورا دن گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی صبح سے لے کر شام تک ایک ہی علم پر گفتگو کرتے۔ جیسے آج تفسیر پر گفتگو ہو رہی ہے تو کل حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، پرسوں فقہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اگلے دن کسی اور علمی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک ہی موضوع پر پورا دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی ایک موضوع پر 1 گھنٹہ بھی مسلسل بات کرنا بہت مشکل کام ہے کہ جس کے پاس بہت وافر علم ہو وہ بمشکل 1-2 گھنٹے کسی ایک موضوع پر مسلسل بات کر سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا وافر علم عطا کیا تھا کہ ایک موضوع پر پورا دن گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
लिमुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हीन बाअसहु इलल यमन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजा, तो उस वक्त हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये चंद नसीहतें फरमाई। फरमाया कि इन्नका सतअती कौमन मिन अहलिल किताब, कि आप अन करीब अहले किताब में से एक ऐसी कौम के पास जा रहे हैं। फ़इज़ा जितहुम फ़दउहुम इला अन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जब तुम उनके पास चले जाओ तो उनको इस बात की तरफ दावत दो कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊ लक बिज़ालिका, अगर वो तुम्हारी इस मामले में इताअत कर लें, फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, तो उनको इस बात की खबर देना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। फ़इन्हुम अताऊ लक बिज़ालिका, अगर वो इस बात में भी तुम्हारी इताअत कर लें, फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुम सदक़ा, तो उनको इस बात की इत्तला देना, इस बात की खबर देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर सदका फ़र्ज किया है, सदका वाजिब किया है। तो ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, जो कि उनके मालदारों से लिया जाएगा। फ़तुरद्द अला फ़ुक़राइहिम, और उन्हीं के फ़ुक़रा और ज़रूरतमंदों पर लौटाया जाएगा। फ़इन्हुम अताऊ लक बिज़ालिका, अगर वो इस मामले में भी तुम्हारी इताअत कर लें, फ़इय्याका व कराइम अम्वालिहिम, तो उनसे उनका अच्छा माल लेने में इज्तिनाब करना। वत्तक़ि दावतल मज़लूम, और मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहना। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं होता। तो अब हम इस हदीस की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने पेश करते हैं। इस हदीस का पस मंज़र ये है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, और जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो रास्ते में खुद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा की आखिरी सरहद तक रुखसत किया, और रास्ते में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चंद नसीहतें फरमाईं। उनमें से बाज़ नसीहतों का जिक्र इस रिवायत के अंदर मौजूद है। चूँकि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर बनकर यमन की तरफ जा रहे थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेज रहे थे, तो इसलिए आपने कुछ नसीहतें फरमाई, कुछ खैर खाई की बातें फरमाई कि वहाँ पर जाकर इस तरीक़े से तुम अपना निज़ाम हुकूमत चलाना, इस तरीक़े से लोगों के साथ पेश आना। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो कि अहले किताब हैं, यानी यहूद और नसारा में से तुम जो अहले किताब लोग हैं उनके पास जा रहे हो। तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना, कलमा तौहीद की तरफ बुलाना, क्योंकि इस्लाम की दावत काफिरों के लिए सबसे पहले कलमा तौहीद ही है, क्योंकि जब तक कोई शख्स कलमा तौहीद को कबूल न करे तो उस पर जो है इस्लाम के बकिया अहकाम लागू नहीं होते जब तक कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। तो आपने फरमाया कि उनको इस बात की तरफ बुलाना कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें, मुसलमान हो जाएं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो फिर उनको ये बताना, उनको ये खबर देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रोज़ दिन और रात में तुम पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। यानी जब कोई शख्स कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए तो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो इस्लाम के अहकाम हैं, जो इबादात हैं, उनमें सबसे पहला हुक्म, सबसे पहली इबादत नमाज है। तो आपने फरमाया कि जो लोग मुसलमान हो जाएं, कलमा तौहीद का इकरार कर लें, फिर उनको बताना कि अब मुसलमान होने के बाद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अगर इस मामले में भी तुम्हारी बात मान लें, यानी सच्चे दिल से अगर मुसलमान हुए हों, तो यकीनन वो इस बात में तुम्हारी इताअत करेंगे। तो फिर फरमाया कि तुम उनको ये खबर देना कि अल्लाह ताला ने तुम पर सदका वाजिब किया है, सदक़े को फ़र्ज किया है, और सदका जो है उन्हीं के मालदार लोगों से लिया जाएगा और उन्हीं के फ़ुक़रा पर उसको वापस लौटाया जाएगा। इस बात की तफसील को समझना ज़रूरी है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने मुबारक में चूँकि इस्लामी हुकूमत और इस्लामी सल्तनत कायम थी, और इस्लामी सल्तनत की रूह से हुक्म शरई ये है, इस्लाम का हुक्म ये है कि हुकूमत खुद मालदार लोगों से जिन पर ज़कात फ़र्ज हो उनसे उनका माल लेकर, यानी जो ज़कात का माल हो उनसे वसूल करके फ़ुक़रा पर, मसाकीन पर और जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको उनके ऊपर तक़सीम करती है। तो ये हुक्म है उस वक्त जबकि इस्लामी सल्तनत या इस्लामी हुकूमत कायम हो। आजकल चूँकि इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं और हुकूमतें जो है अमानतदार भी नहीं हैं जैसा कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में थी, तो इसलिए फ़ुक़हा कराम का हुक्म और फैसला ये है कि अब हर मुसलमान अपनी अपनी ज़कात इनफिरादी तौर पर ख़ुद अदा करे, वरना अगर इस्लामी सल्तनत कायम हो और इस्लामी उसूलों के मुताबिक कायम हो तो फिर दोबारा यही हुक्म लागू होगा कि इस्लामी सल्तनत तमाम साहिब निसाब लोगों से जिन पर ज़कात फ़र्ज है उनसे ज़कात का माल लेकर मुस्तहिक लोगों पर वो माल तकसीम कर देगी। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उन्हीं के मालदारों से माल लेकर उन्हीं के फ़ुक़रा पर माल को लौटा देना, यानी मालदारों से माल लिया जाएगा और जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, उन पर ज़कात का माल तकसीम कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपने नसीहत फरमाई कि अगर वो लोग तुम्हारी इस बात को भी मान लें, यानी ज़कात देने पर तैयार हो जाएं और तुम्हारे पास अपना ज़कात का माल जमा करवा दें, तो फिर उनका अच्छा माल लेने से इज्तिनाब करना। यानी यहाँ पर जो है हुकूमत करने का एक दयानतदाराना उसूल आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हुकूमत का काम यह है कि अपनी रियाया के साथ नरमी और शफ़क़त बरते, अपनी रियाया पर जुल्म न करे और अपनी रियाया से जो है ज़बरदस्ती उनका अच्छा माल हासिल न करे, जिस तरह के अक्सर जालिम हुकूमतें ये काम करती हैं कि अपनी रियाया पर जुल्म करके उनकी ज़मीनों पर, उनकी जायदाद पर, उनकी अम्वाल पर जालिमाना और गासिबाना कब्ज़ा कर लेती हैं, या उनसे जो है उनका अच्छा माल जो है वो ज़बरदस्ती हासिल कर लेती हैं। इस तरह करना शरन जायज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो ज़कात अदा करने पर तैयार हों तो उनका सारे का सारा अच्छा माल न ले लेना, कि ये ना हो कि ज़कात के माल में जो अच्छी चीज़ें हों वो तुम हुकूमत में होने की हैसियत से हाकिमाना तौर पर उनसे ज़बरदस्ती ले लो और उनके पास कुछ भी बाकी ना बचे, ऐसा ना करना। और उसके बाद आपने वईद के तौर पर फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, यानी जो हुकूमतें अपनी रियाया पर जुल्म करती हैं उनको इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए, इस बात से सबक हासिल करना चाहिए कि अपनी रियाया पर जुल्म करेंगे तो रियाया की बद्दुआ उनके के ऊपर जो है कबूल होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके बारे में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, यानी अल्लाह ताला मजलूम की बद्दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। ये दुआ जो है बग़ैर किसी रुकावट के फ़ौरी तौर पर कबूल होती है। तो तमाम हुक्काम को और तमाम हुकूमतों को इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए कि अपनी रियाया पर, अपनी अवाम पर जो जुल्म सितम ढाते हैं, अपनी रियाया पर जो जुल्म करते हैं, वो उनकी बद्दुआ से बचें, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ जो है वो ज़रूर असर करती है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में अजाब नाजिल ना करें तो आखिरत का अजाब तो यकीनी है, और आखिरत में जो है पकड़ और गिरफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर फरमाएंगे। इसलिए अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है, किसी के साथ ज़्यादती करता है,
तो वो ये ना समझे कि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेरी गिरफ्त करने वाला नहीं है, कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन ज़रूर गिरफ्त फरमाएंगे और ज़रूर पकड़ फरमाएंगे। वहाँ पर मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गिरबान होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वहाँ पर मजलूम को उसका हक दिलवाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदीस की सही समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।